पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट जो IMF बेलआउट्स के बिना बैरली एक महीना सरवाइव नहीं कर सकता। Yet some people in Pakistan believe that they could destroy India, a nation with over 666 billion in their foreign reserves. When I will grow up, I will be an army and save Pakistan and destroy India. To fight India? Yes. Why? I am Muslim. Pakistan Zindabad! Thank you. You want to fight India? Yes, inshallah, one day. Inshallah, one day you want to fight India? Yes. I want to be a creep. Destroy India. Destroy India. Why? I am Muslim. You Hindu. No, wait. You want to fight India because you're Muslim? Yes. Well, fucking shit. You hear it here first, folks. What if you lose? I never thought of that. Grape. Pakistan Zindabad. इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS की दहशत गर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। Pakistan have only two things to do. One is to destroy India and second ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखेंगे beggars can't be choosers. पाकिस्तान में सबको मैन कैरेक्टर सिंड्रोम है। Everyone is delusional that they think they have won all the wars against India. Everyone wants to become कौम का मसीहा। का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। Everyone wants to destroy India. Just keep telling them that they have the strongest army. नहीं है। काली बेड़े हर जगह पे होती हैं, इवन इन पाकिस्तान। लेकिन अब इस बारे मेट पे बात करेंगे क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा अंधभक्तों को आईना दिखाने का। आजो अंधभक्तों आईना देख लो। भैया आप भूल तो नहीं गए, आपकी टेररिस्ट को इंडियन आर्मी ने भाग भाग के मारा था। योर आर्मी सो ब्रेव यार, अपने ही लोगों को आतंकवादी बना के फिर उन्हें उड़ाने में हिम्मत तो लगती है। अच्छा, बट नो, दिस इज नॉट ब्रेव। यू नो व्हाट इज ब्रेव? क्या आपने किल एंड डंप पॉलिसी के बारे में सुना है? नो? Okay, let me tell you. पाकिस्तान आर्मी पर ईयर thousands of ब्लोच एक्टिविस्ट, स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल को ले जाती है और उन पे टेररिस्ट का टैग लगा के उन्हें मार देती है। और पाकिस्तानी फोर्सेस की नेक्स्ट जुडिशियल किलिंग्स को कहा जाता है किल एंड डंप पॉलिसी। यस, एग्जैक्टली द सेम। यू माइट हैव सीन इट इन धुरंधर। Exclusive input on Pakistan's kill and dump policy in Balochistan. Now, another chilling discovery in Balochistan has renewed outcry over what families and activists call systematic enforced disappearances. Bullet-riddled bodies have been found in a stream in Balochistan's Duki district. Local outlets, including the Balochistan Post, report a disturbing pattern. One of the victims, Muhammad Yunus, had allegedly been a victim of forcible disappearance by Pakistani security forces. In recent months, security forces and Pakistan's counter-terrorism department have reportedly killed suspected armed militants in Duki. But in many cases, families later identify the dead as victims of enforced disappearance. According to the UN, hundreds have gone missing in Balochistan over the years. This is called bravery. वैसे इंडियन आर्मी जिन सिविलियंस को मारती है, they sounds like this. Free Palestine from India. What the fuck? पहले मुझे लगता था इंडियन सीपोय सिर्फ अंग्रेजों के कमेंट सेक्शन में एज ए इंडियन आई एग्री विद यू ब्रो करते हुए मिलते हैं, बट पाकिस्तानी कमेंट्स में छी। As an Indian, I'm sorry, bro. As an Indian, I apologize. As an Indian, I support you, bro. Please keep calling them out. Support from India. एक बात बताओ, पाकिस्तान में ऐसा है क्या जो अच्छा है? एक मिनट, पक्का बताऊं? आवाज अच्छी तो नहीं है, बट हियर वी गो। फूड, फर्नीचर, फुटबॉल, हॉस्पिटैलिटी, म्यूजिक एंड आर्ट, प्रोग्रामर्स, पोएट्स, पेट्रियोट्स, प्लेसेस एंड। सपोज तुम एक इंटरव्यूअर हो और तुम्हारे सामने एक कैंडिडेट बैठा है एंड तुम उस कैंडिडेट से पूछते हो, सो मिस्टर चिंटू, व्हाई वुड वी हायर यू? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? एंड मिस्टर चिंटू कम्स अप विद आंख एंड नाक, हाथ एंड पाँव, गांड एंड गला। What's wrong with you, cutie? कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, प्लेसेस एंड हॉस्पिटैलिटी हर कंट्री में होती है और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी ये है। Pakistanis? Yes, bro. Alhamdulillah. Why are you Alhamdulillah, so rude? Muslim, bro. Because you are Israeli, you are mother. You're very rude. Even I appreciate your art, culture, music and dance, but आप गलत कंट्री के सामने फ्लैक्स कर रहे हो बेबी डॉल। बांग्लादेश के सामने करते तो जस्टिफाइड भी था। प्रोग्रामर्स, पोएट्स, पेट्रियोट्स, प्लेसेस एंड प्लेयर्स। हैं प्लेयर्स? भाई तू आयरोनिकली बोल रहा है या सच में मीन कर रहा है? ये खातून ने इंडिया से ओवरऑल 28 गेम खेली है जिसमें से 25 हारी है। फोक स्टोरीज एंड एक्टिविस्ट, डिजाइनर्स, स्कॉलर्स, टीचर्स एंड। एक मिनट, क्या स्कॉलर्स?
तुम्हारे स्कॉलर्स तो खुद को इंडिया की औलाद प्रूव करने में लगे हुए हैं। अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबा अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है? हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। जब पृथ्वीराज को शिकस्त हुई 1191 में, चौहानों की हुकूमत ख़त्म हुई। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला के हाथों मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। पाकिस्तान इज सच अ फनी कंट्री। खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इलाका है और ये देख लें आप, पानी मिल नहीं रहा है, पानी लोग कहाँ से भर रहा है, ये पानी ज़ाया हो रहा है और लोग किस तरीके से पानी भर। बलोच हर दिन आर्मी की टोई में राइफल घुसाते रहते हैं, बट एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू डिस्ट्रॉय इंडिया एंड इजराइल। Where are we from? Pakistan. Pakistan. Is Israel afraid of Pakistan or not? Maybe halasna. Afraid of what? Why should we be afraid of Pakistan? Why would we ever be afraid of Pakistan? You should be afraid of Pakistan because you're afraid of Palestinian children When who only have rocks. India. Strong army, wow, great! All textiles, truck art, thinkers and inventors, classics, creators, culture, cuisine, heroes, loyalty and many more crazy. भाई तू रहने दे, हमने मान लिया पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान इज अल्टीमेट सुपर पावर। तू चुप हो जा बस। तू इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है। द ओनली वे यू कैन कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान प्राइड इज बाय नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। तुमने एक पूछी थी, मैंने ढेर बता दी। Now your turn. नो स्वीटी, हम भूखे नंगे गरीब हैं, हमारे पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, or Indian social media. आने की बात नहीं करी हो तो ठीक है, क्योंकि ऑन ग्राउंड और सोशल मीडिया में बहुत फर्क है। It's all over the social media, sir. Believe me, sir. I 100% agree, my friend. It's all over the social media. बस आपका सोशल मीडिया वो कवर नहीं करता। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. डोनाल्ड ट्रंप रिसेंट एक इंटरव्यू में फिर से पीएम मोदी का तारीफ किए। वो कहते हैं मोदी बहुत अच्छे हैं, वो वॉर्स वगैरह से दूर रहते हैं, जो कि स्मार्ट। खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के सेवन नरेंद्र मोदी के सामने आप धीरे पड़े। भाई साहब इतनी तारीफ। भाई तू पक्का सीरियस था ना ये वीडियो बनाते टाइम? ट्रंप कॉल्ड मोदी अ किलर फॉर हिज नेगोशिएशन टैक्टिक्स। तूने आधी क्लिप ही दिखाई ना, ये देख पूरी। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. किलर इज ए स्लैंग गैल चौदे, जो किसी इंडिविजुअल की इनक्रेडिबिलिटी और एक्सीलेंस को परेज या अप्रिशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो मैं एक दो लोगों के बेसिस पे पूरी कंट्री को जनरलाइज करने के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऑल दो पूरे पाकिस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा ओल्ड है, क्योंकि वो 14 अगस्त को आजाद हुए थे और इंडिया 15 अगस्त को। बट नेवर माइंड, एक दो तो इंटेलिजेंट होंगे वहाँ भी, तो लेट्स नॉट जनरलाइज द होल कंट्री। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास में भी बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त रहे हैं और अब भी हैं, एंड शी इज नॉट डम, तो आई वोंट जनरलाइज पाकिस्तान बिकॉज ऑफ वन लो IQ बच्चा। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। बॉम्बरमैन ऑफेंड हो गया। ऑफेंड तो बेटा आप होते हो हर बात पे। किसी ने अगर ऑरेंज पहन के डांस किया तो उस वल्गर डांस पे नहीं, कलर पे कंट्रोवर्सी। हम ऑफेंड होके आउटरीच करते हैं और पाकिस्तान में सीधा। किसी को तुम्हारी लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो उसको मारने पीटने लग जाओ। हेलो माय क्यूटी, डू यू नो व्हाई बांग्लादेश गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान? नो? ओके, लेट मी टेल यू। 1952 में वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप ने देश की 55% पॉपुलेशन जो बंगाली थी उन पे उर्दू लैंग्वेज फोर्सफुली इम्पोज की थी, जहां से पहली बार पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुई थी। और 1971 में पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर के बाद उसका रिजल्ट बांग्लादेश के रूप में मिला था। Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali vengeance. फिर उसे अगले ही साल 1972 में हैदराबाद के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स मार देते एक सिंधी स्पीकिंग लेक्चरर को। वहाँ से शुरू होता है एक और लैंग्वेज बेस्ड जेनोसाइड, जिसमें 50 से ज्यादा मौत होती है। और पाकिस्तान में आज भी लोग रीजन और लैंग्वेज को लेके एक दूसरे को मारते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ 9% उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन होने के बाद भी पूरी पॉपुलेशन पे फोर्सफुली उर्दू लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई। पाकिस्तानीज आर फनी, नो डाउट। तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है।
वहाँ पे गैस है नहीं गैस इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है। आटा है क्या? हाँ वो तुम्हारी मम्मी ने भेज दिया था। ओए ये मैं नहीं बोल रहा, किसी ने कमेंट किया था। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए और हो रहे हैं। पाकिस्तान में 1 किलो आटा खरीदने के लिए तेरे अब्बू की एक दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। मैंने नहीं बोला। किसी ने कमेंट किया था। Indians, please don't make fun of Pakistan because life makes fun of them every single day. Recently, the Defense Minister of Pakistan, Khwaja Asif, the same guy who said that the proof of their success in Operation Sindoor was on social media, inaugurated a Pizza Hut store in Sialkot. Even local MLAs don't do that in India, but this is Pakistan, so maybe it's okay. Photos and videos were taken for social media, but then Pizza Hut came out with this statement. The outlet he inaugurated was actually fake. Yes, Defense Minister inaugurating a fake Pizza Hut outlet. And look at how Pizza Hut trolled them on social media. From sending expired aid to using cat filter in press conference. And now this, Pakistan finds itself full of trolling every day. Strong army war! ओके सो वैसे तो मेरी ये वीडियो किसी पाकिस्तानी तक जाएगी नहीं, बिकॉज हम ऑब्वियसली छोटा क्रिएटर विद 31 सब्सक्राइबर्स। बट इन केस अगर मेरी ये वीडियो किसी पाकिस्तानी तक जाती है तो रिलैक्स क्यूटीज, आई एम ऑल्सो अ पाकिस्तानी। नहीं मानते? लेट मी मेक यू बिलीव। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना ग्रेटर मैप रिलीज किया था जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जोधपुर एंड गुजरात के कुछ पार्ट्स को क्लेम किया था। बट हम वापस आ जाते हैं जोधपुर पे। So basically I'm from Jodhpur and from now on no Pakistani can abuse me in comment section because I'm also a Pakistani. So relax my Indian cuties. I can't say भारत माता की जय because it's always पाकिस्तान अम्मी की जय। अब हमें चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके सो दिस इज इट एंड इन दी एंड मैं स्लो IQ बच्चे की तरह कन्विंसिंग बातें करके या पूरी वीडियो में रेज वेट करने के बाद लास्ट में मोरालिटी का मौलाना बनने की कोशिश तो नहीं करूंगा ताकि मुझे पाकिस्तानी ऑडियंस मिल जाए। मैं क्या करूंगा उनका। बट वन थिंग इज क्लियर, ये जितने भी लो IQ क्रिएटर होते हैं जो पूरे वीडियो में रेज बेट करेंगे, एक दूसरे पे हेट मॉन्गरिंग करेंगे एंड लास्ट में मोरालिटी के चौधे बन के सारा दोस्त पॉलिटिशियंस पे डाल देंगे। बट नो, पॉलिटिशियंस से ज्यादा ऐसे लो IQ क्रिएटर्स लड़वाते हैं आपस में जो पूरे वीडियो में रेज बेट करके लास्ट के कुछ मिनट्स में बिल्कुल ही ज्ञानी बन जाते हैं। और ना ही मुझे चाहिए कि कोई पाकिस्तानी सीपो इन इंडियन सीपोइस की तरह मेरे कमेंट सेक्शन में आया जब पाकिस्तानी आई एग्री विद यू ब्रोक रहे। ऑलवेज लव योर कंट्री एंड मदरलैंड। प्रॉब्लम्स हर कंट्री में होती है। दुनिया में ऐसा कोई देश या कम्युनिटी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, क्योंकि एक देश और कम्युनिटी ह्यूमन से बनती है और ह्यूमंस कभी परफेक्ट नहीं होते। सो वेदर यू आर इंडियन और पाकिस्तानी, ऑलवेज लव योर होमलैंड। ऐसे कभी मत बनो जो चाचा से चीची खाने के लिए अपने पिताजी को गाली दे दे। एंड इफ यू आर इंडियन देन यू कैन सब्सक्राइब मी। खाली सब्सक्राइबर करना है मुझे।